Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Learning Pharmacy with Dr. Radhika Bhaskar. Please do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. In this video, we will discuss about parenteral products. Parenteral is a dosage form of therapeutic agents that are free of viable microorganism. There are certain advantages of this dosage form, in which the first one is it shows a rapid absorption of the drug in the body. This dosage form is very much suitable for unconscious patients. There is no risk of drug degradation by digestive juices. Drug in this dosage form is required in low concentration. Along with all these good number of advantages, there are certain disadvantages also, in which the first one is trained personnel is required. There is pain on injection, difficult to reverse the drug effect once it is injected in the body, and it is a costly dosage form as the preparation must be sterile. Parenteral preparations may be given by various routes, in which the first one is the intravenous route, by which it is given in the veins, intramuscular route, by which it is given in the muscles, subcutaneous route given in the subcutaneous tissues, intradermal route by which it is given in the dermis area of the skin, and intraperitoneal route. This intraperitoneal route is more often applied in animals than to humans. Now let's discuss all these routes of administration in detail. पहला आता है आपका इंट्रावीनस रूट. इस रूट से जनरली हम एक्वस सॉल्यूशंस एडमिनिस्टर करते हैं इनटू द पेशेंट्स बॉडी, और इसमें हम सस्पेंशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो सस्पेंशन के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी कैपिलरी को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है. ठीक है. जहाँ तक हम बात करते हैं इमल्शंस की, इमल्शंस केवल वही जिनके डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साइज को हमने कंट्रोल किया है, ताकि हम उनको इंट्रावीनसली दे सके और वो किसी तरह की ब्लॉकेज ना कॉज करे. सिर्फ उन्हीं इमल्शंस को हम इंट्रावीनसली दे सकते हैं. Whereas in case of intramuscular, subcutaneous and intradermal route, all suspension, solution and emulsions can be given through these routes. अब कितना वॉल्यूम हम इन पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दे सकते हैं? इंट्रावीनस के केस में हम 1 ml से लेकर 1000 ml तक के सॉल्यूशन बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा लार्ज वॉल्यूम पेरेंटरल, जैसे कि आपका ग्लूकोज सॉल्यूशन हो गया या फिर आपका सलाइन सॉल्यूशन हो गया, वो जनरली लार्ज वॉल्यूम्स में रहता है, तो वो हम इंट्रावीनस रूट से ही देते हैं. Whereas in case of intramuscular route, generally 0.5 से लेकर 2 ml तक का सॉल्यूशन ही हम देते हैं. इन सबक्यूटेनियसली 1 ml और उससे कम सॉल्यूशन हम, उससे कम अमाउंट का सॉल्यूशन हम बॉडी में दे सकते हैं. Whereas in case of intradermal route, not more than 0.05 ml can be administered through this route. अब हम एब्जॉर्प्शन रेट की बात करें तो इंट्रावीनस रूट का सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी वेन्स में जाती है, जिसकी वजह से इट शोज कंप्लीट ड्रग अवेलेबिलिटी दैट टू इमीडिएटली, तो इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट रहता है. वेराज इन केस ऑफ इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन रेट को, जैसे कि उस पर्टिकुलर मसल या सबक्यूटेनियस टिश्यूज को कितनी सारी कैपिलरीज अपना ब्लड सप्लाई कर रही हैं, या फिर कितने सारे टिश्यूज या फिर टिश्यू सेल वॉल्स को आपकी ड्रग को पार करके जाना है डायरेक्टली इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं ये अफेक्ट करते हैं उनके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, जो स्लो भी हो सकता है और वेरी स्लो भी हो सकता है. Whereas in case of intradermal route of administration, आपकी स्किन की थिकनेस इफेक्ट करती है आपकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को. Now, regarding the isotonicity of the solution, in all these route of administration हम प्रेफर करते हैं कि हमारे जो solutions हैं वो आइसोटोनिक हो, ताकि वो बॉडी में किसी भी तरह की इरिटेशन कॉज ना करें, which may cause the discomfort to the patients. Let's study the formulation details for the parenteral preparation, in which the first one is the vehicle or the solvent system. This vehicle or the solvent system can be of two types. First one could be the aqueous system and second one is the non-aqueous system. Now in this slide we'll study about the aqueous system, that is water for injection. This water for injection is prepared by distillation method using a distillation still. Now currently the method approved by USP is the reverse osmosis process.
The permitted value of solid content in water for injection is 10 ppm. Conductivity of the water should not be more than 1 megaohms. Total organic carbon should not be more than 500 ppm. There are certain quality checks for the water for injection to test its quality, in which the first one is to test the total solid content, second gravimetric analysis of water for injection, and electrolytic measurement. The aqueous system or the water which we are using for the preparation of parenterals and irrigating solution should be free from pyrogens. Now what are these pyrogens? These pyrogens are the metabolic product of microorganisms such as bacteria, molds and viruses. अब ये पता कैसे चलेगा हमें कि हमारी बॉडी में पायरोजेंस आ गए हैं? जैसे हमारी बॉडी में पायरोजन एंटर करते हैं, हमारी बॉडी हमें कुछ सिम्टम्स शो करने लगती है, जैसे कि राइज इन बॉडी टेम्परेचर, चिल्स, बॉडी एक, cutaneous vasoconstriction and rise in arterial blood pressure. Now there are certain pyrogen tests performed to check the presence of pyrogens, in which the first one is the test in rabbits or it is also called as sham test. ये टेस्ट जो है इट इज़ अ क्वालिटेटिव बायोलॉजिकल टेस्ट जो आपके रैबिट्स के फीवर रिस्पॉन्स पे बेस्ड है. ये टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं? जो हमारी पायरोजेनिक सब्सटेंस या पायरोजेनिक प्रिपरेशन होती है उसको हम हमारे रैबिट के ईयर वेन में इंजेक्ट करते हैं, और अगर उस प्रिपरेशन में पायरोजेंस हैं तो वो विद इन 3 आवर्स रैबिट के बॉडी टेम्परेचर को राइज करना स्टार्ट कर देंगे. और उस बॉडी टेम्परेचर को हम कैसे नोट करेंगे? हम करेंगे रैबिट के रेक्टल टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे यूजिंग रेक्टल थर्मोकपल्स. द सेकेंड पायरोजन टेस्ट इज द लाल टेस्ट, दैट इज लिमुलस एमीबोसाइट लाइजेट टेस्ट. ये टेस्ट कैसे होता है? दिस इज एक्चुअली अ इन विट्रो टेस्ट फॉर पायरोजेंस, जिसमें आपके जो एंडोटॉक्सिन है अगर वो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हैं तो दे विल शो अ जेलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइजेट ऑफ एमीबोसाइट जो हमें हॉर्सशू कैप से मिलते हैं. देखिए ऐसे परफॉर्म करते हैं हमारा लाल टेस्ट इन दी पेट्री डिश. अगर आपके वो एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से है तो क्या होगा? विद इन 60 मिनट्स वो आपका जेल फॉर्म करेंगे जो शो करेगा कि आपके प्रिपरेशन में पायरोजेंस प्रेजेंट है. ये जो टेस्ट है ये आपके 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू दी रैबिट टेस्ट और दी शाम टेस्ट. Another kind of solvent used for the preparation of parenteral products are the non-aqueous solvents. अब हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर की प्रेजेंस में कुछ डिग्रेडिव रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एक्सेट्रा. तो उन केस में हमें वाटर को अवॉइड करते हुए या फिर एक्वस सॉल्वेंट्स को अवॉइड करते हुए नॉन एक्वस व्हीकल्स का यूज करना पड़ता है. बट दीज नॉन एक्वस व्हीकल्स शुड नॉट बी इरिटेंट, टॉक्सिक, सेंसिटाइजिंग and should not cause any adverse effect in the body. जो important group हम लोग नॉन एक्वस व्हीकल का यूज करते हैं those are the fixed oil. ये जो ऑयल्स हम यूज कर रहे हैं these must be of vegetable origin. They should be liquid at room temperature and should not become rancid readily. जो commonly used oils हैं those are corn oil, cotton seed oil, peanut oil and sesame oil. जो हमारे फिक्स्ड ऑयल हैं उनको जनरली हम हार्मोनल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं. अब इसके बाद आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं आपके नॉन एक्वस व्हीकल्स के या फिर आपके ऑयल्स के, जैसे कि बीइंग विस्कस दे आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर बिकॉज ऑफ विच देयर आर इंसिडेंट्स ऑफ पेन अपॉन देयर इंजेक्शन. आफ्टर सॉल्वेंट सिस्टम अनदर मेजर एडिटिव इन द स्टेराइल प्रिपरेशन इज द सोल्यूट्स. ये सोल्यूट्स क्या होता है? ये सोल्यूट्स आर दी माइनर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड इन दी सॉल्वेंट. मतलब जो जिस तरह से आपके सॉल्वेंट्स में से आपके पायरोजेंस हमारे स्टेराइल प्रिपरेशंस में आ सकते हैं, उसी तरीके से आपके सोल्यूट्स के कंटेमिनेंट्स भी हमारे पेरेंटल प्रिपरेशंस में आ सकते हैं. तो इन दोनों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसलिए दी सोल्यूट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली प्योर. These should be free from microbial and paragenic contamination, and these should be properly stored, particularly the opened containers. क्योंकि ये हमारे माइनर कंपोनेंट्स हैं, बहुत कम क्वांटिटी में यूज होते हैं, तो इसलिए आपके जनरली कंटेनर्स जो हैं वो हाफ यूज रह जाते हैं जिनको हम बाद में क्लोज करते हैं. तो ये ओपन कंटेनर्स जो रहते हैं इनमें से आपके कंटेमिनेशन आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है.
तो इसलिए हमें हमारे जो बैच है, प्रोडक्शन लॉट है, वो हमें इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि हमारा पूरा कंटेनर एक ही बारी में यूज हो जाए, जिसकी वजह से किसी भी तरह के कंटेमिनेशन के चांसेस रिड्यूस डाउन हो जाए। नाउ आफ्टर दीज टू मेजर एडिटिव्स, जैसे कि आपके सॉल्वेंट सिस्टम एंड द सोल्यूट, और आपके कुछ सब्सटेंसेस हम इसके आपके पेरेंटल प्रिपरेशन में ऐड करते हैं, जो कि आपकी स्टेराइल प्रिपरेशन की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। Now these additive must be compatible, non-toxic, they should not interfere with the therapeutic efficacy of the active compound and they should be stable. अब जो सबसे पहला हमारा एडिटिव सब्सटेंस है वो है आपका एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ये जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है ये हमें बैक्टीरियोस्टैटिक कंसंट्रेशन में डालना है, मतलब जो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। ये जनरली हमारे मल्टीपल डोज वायल्स में ऐड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी उन वायल्स में से मल्टीपल डोज यूज होनी है, यानी कि एक बारी अगर आपकी वायल ओपन हुई तो वो एक ही बारी में फिनिश नहीं होगी, बार बार रीओपन होगी। तो इस केस में आपके बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो मल्टीपल डोज वायल्स के अंदर आपके एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स का होना जरूरी है। Example of antibacterial agents are the benzyl alcohol, phenol, methyl parabene, butyl parabene, etc. Next added agent is the antioxidants. ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके कैसे काम करते हैं? ये आपके थेरेप्यूटिक एजेंट के ऑक्सीडेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि आपके थेरेप्यूटिक एजेंट को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं। जनरली ये आपके 4 डिफरेंट वेज में काम करते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीऑक्सीडेंट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दे प्रेफरेंशियली गेट ऑक्सीडाइज। ये खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और आपके थेरेप्यूटिक एजेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है आपके एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइसल्फाइड एंड थायोयूरिया। सेकंड, एंटीऑक्सीडेंट विच एक्ट एज ब्लॉकिंग एजेंट। ये क्या करते हैं? आपके ऑक्सीडेटिव चेन रिएक्शन को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होने के चांसेस रिड्यूस डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स butylated hydroxytoluene, that is BHT. Another is the synergistic antioxidants. ये क्या करते हैं? They increase the effectiveness of the antioxidants. For example, ascorbic acid, citric acid, tartaric acid, etc. And the last one is the chelating agent. ये आपके chelating agent कैसे काम करेंगे? ये आपके उन कैटलिस्ट को जो कि आपके ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उन्हीं को ये उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड सॉल्ट्स। द नेक्स्ट एडेड सब्सटेंस इज द बफर्स। ये बफर्स का क्या काम होता है? दे जनरली मेंटेन द पीएच ऑफ द प्रोडक्ट। अब पीएच कैसे चेंज होता है आपके प्रोडक्ट का? सबसे पहले जब हम हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट को ग्लास कंटेनर्स में स्टोर करते हैं तो चांसेस है उन ग्लास कंटेनर की वॉल से कुछ उसके अपने कॉन्स्टिट्यूट्स जो हैं वो आपके स्टेराइल प्रिपरेशन में आके डिसॉल्व हो जाएं, जिसकी वजह से आपके प्रिपरेशन का पीएच चेंज हो सकता है। सेकेंडली, जो हम रबर क्लोजर्स या फिर प्लास्टिक क्लोजर्स को यूज कर रहे हैं उनके अंदर से भी उनके कुछ सब्सटेंस लीच आउट होके आपके स्टेराइल प्रिपरेशन में डिसॉल्व हो सकते हैं और आपके प्रोडक्ट का पीएच चेंज कर सकते हैं। फाइनली, जो हमारे कंटेनर के अंदर हम एयर स्पेस को छोड़ते हैं आफ्टर फिलिंग द कंटेनर्स, तो उन एयर स्पेस में जो गैसेस या फिर वेपर्स रहते हैं वो भी आपके प्रिपरेशन में डिसॉल्व होके उसके पीएच को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम बफर्स को ऐड करते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ बफर्स आर एसिटिक बफर्स, सिट्रिक एसिड बफर, पोटेशियम फॉस्फेट बफर्स, एक्सेट्रा। अनदर एडिड एजेंट इज द टोनिसिटी कॉन्ट्रीब्यूटर। ये टोनिसिटी कॉन्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है? दे जनरली रिड्यूस द पेन ऑफ इंजेक्शन। इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम क्लोराइड, ग्लिसरीन, लैक्टोज, एक्सेट्रा। ये जो टोनिसिटी क्या होता है? व्हाट आर द टोनिक सॉल्यूशन? दीज आर द सॉल्यूशन दैट हैज द सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन एज ऑफ द सेल एंड ब्लड ऑफ द बॉडी। जनरली हम 3 डिफरेंट मेथड से आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। First one is the method based on freezing point data. Second, method based on the molecular concentration and based on the sodium chloride equivalence. Let's understand the first method of calculating isotonicity, that is method based on freezing point data. अब क्योंकि यहाँ पे हम freezing point data से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आइसोटोनिसिटी को, तो हम
यहाँ पे सारे के सारे सॉल्यूशंस की बात हम उनके फ्रीजिंग पॉइंट डाटा के बेस्ड पर ही करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे ब्लड प्लाज्मा और जो हमारे टीयर्स होते हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज -0.52 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे कुछ हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं जो जनरली इससे हायर टेम्परेचर पे फ्रीज होते हैं, तो इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को हमें बेसिकली आइसोटोनिक करना है। तो आइसोटोनिक इनको बनाने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। इन कैलकुलेशंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ प्रोक्रेन हाइड्रोक्लोराइड। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -0.122 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा किसी एडजस्टिंग सब्सटेंस से, ताकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाए एंड इट कम्स अप टू -0.52 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 0.52 माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन। अनएडजस्टेड सॉल्यूशन यहाँ पे कौन सा है, इट इज प्रोक्रेन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, दैट इज 0.52 minus 0.122 degree Celsius. It will give you minus 0.398 degree Celsius. अब हमने बात की थी एडजस्टिंग सब्सटेंस। हम कौन सा एडजस्टिंग सब्सटेंस यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक हो जाएगा। वी आर यूजिंग 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहता है आपका 0.576 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम इसके लिए अब कितना अमाउंट हमें सोडियम क्लोराइड का रिक्वायर्ड होगा ताकि हम हमारे अनएडजस्टेड सॉल्यूशन दैट इज प्रोक्रेन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बना सके। ये हमें किस प्रोपोर्शन में चाहिए होगा, लेट्स सी द फॉर्मूला। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज द 0.52 माइनस A अपॉन B। अब A क्या है आपका, A इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन। अनएडजस्टेड सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, -0.122 डिग्री सेल्सियस, एंड B इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंस। एडजस्टिंग सब्सटेंस कौन सा है हमारा, सोडियम क्लोराइड। उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका 0.576 डिग्री सेल्सियस। तो इट विल गिव अस 0.522 माइनस 0.122 अपॉन 0.576, which will give us the value 0.69%. So we need 0.69% weight by volume of the NaCl to adjust the isotonicity of procrane hydrochloride. The next method of calculating the isotonicity is based on the molecular concentration. अब इस मेथड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन फॉर द नॉन आयोनाइजिंग सोल्यूट और दूसरा हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर द आयोनाइजिंग सोल्यूट। नाउ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द नॉन आयोनाइजिंग सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट, इट विल हैव इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर 22.4 एटमॉस्फेयर, whereas the osmotic pressure of blood plasma and tears is the 6.7 atmosphere. तो इन दोनों वैल्यू से हम मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6.7 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट विल गिव यू 0.3 मोलर approximately. Now let's understand this with the help of an example. Now we have to find the concentration of anhydrous dextrose needed to produce a solution isotonic with the blood plasma. यानी कि हमें कितनी कंसंट्रेशन में एनहाइड्रस डेक्सट्रोज का रिक्वायर्ड है टू मेक द सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे एनहाइड्रस डेक्सट्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। वो कितना है 180, और ये जो आपका डेक्सट्रोज है दिस इज अ नॉन आयोनाइजिंग सोल्यूट। तो इस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.3 इंटू एम, दैट इज 0.3 एम। तो यहाँ पे क्या हुआ 0.3 इंटू एम क्या है आपका, दिस इज 180, तो इट विल गिव यू 54 ग्राम्स पर लीटर। तो 54 ग्राम पर लीटर ऑफ द एनहाइड्रस डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे आयोनाइजिंग सोल्यूट्स की। आयोनाइजिंग सोल्यूट्स की फॉर्म में की केस में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, W इज इक्वल टू 0.3 m डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पे W क्या है, W इज द कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड इन ग्राम पर लीटर, m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट,
and N is the number of ions produced from each molecule of the solute assuming that the dissociation is complete। ठीक है। अब अगर हमें हमारे आयोनाइजिंग सोल्यूट के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ एडजस्टिंग सब्सटेंस को ऐड करना पड़ेगा। ये एडजस्टिंग सब्सटेंस क्या करेंगे, इट विल प्रोड्यूस द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इक्विवेलेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन आयोनाइजिंग सोल्यूट। तो जितनी कंसंट्रेशन में आपके नॉन आयोनाइजिंग सोल्यूट प्रेजेंट था उतने ही को ही उसी कंसंट्रेशन में ये आपके आयोनाइजिंग सोल्यूट को भी फॉर्म कर देगा, दैट इज 0.3 m। ये करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन। ये जो फर्स्ट स्टेप में हम EMC कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी द EMC ऑफ द नॉन एडजस्टेड सब्सटेंस। सेकेंडली जो हमारी वैल्यू आएगी आपके फर्स्ट स्टेप से, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.3 से, जो हमें क्या देगा, EMC ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंस। लास्टली उस वैल्यू, फाइनल वैल्यू को जो हमें स्टेप 2 से मिलेगी, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम पर लीटर के यूनिट में। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू मेक 0.12% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आइसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा। यानी कि 0.1% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को आइसोटोनिक बनाने के लिए हमें कितने कंसंट्रेशन में डेक्सट्रोज को ऐड करना होगा। तो समझते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है ये आयोनाइजिंग सोल्यूट है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, W इज इक्वल टू 0.3 m/n। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम 0.3 जो ये वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर देंगे हमारे EMC से, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉन एडजस्टेड सब्सटेंस दैट इज सोडियम क्लोराइड की इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। बाकी की सारी वैल्यू W, M और N की वैल्यू हमारे पास है। यानी कि W की वैल्यू क्या हुई 1.2 बिकॉज वी आर हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज 0.12%। M क्या है, आपके सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, वेयर एज सोडियम क्लोराइड आपके 2 आयंस में डिसोसिएट होता है, तो N कितना हो गया 2। ठीक, अब यहाँ पे ये अगर हम फॉर्मूला में सारी वैल्यू डालेंगे तो इट विल बी 1.2 इज इक्वल टू C माइनस 58.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू C की हमें क्या मिलेगी, द इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द अनएडजस्टेड सब्सटेंस इज 0.041। ठीक है, अब हमें हमारे एडजस्टिंग सब्सटेंस की EMC कैलकुलेट करनी है, जो है हमारा डेक्सट्रोज। तो उसके लिए क्या रहेगा 0.3, सेकेंड स्टेप क्या था, हमें जो हमारी फर्स्ट स्टेप से वैल्यू आई है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.3 से। तो 0.3 माइनस 0.041, सो द EMC ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इज 0.259। एंड फाइनली कितनी कंसंट्रेशन में हमें डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड होगा, that will be given by 0.259 m, यानी कि 0.259 into the molecular weight of dextrose that is 180. So we need 46.62 gram per liter of dextrose to make 0.12% solution of sodium chloride isotonic with blood plasma. The last method for calculating the isotonicity is based on the sodium chloride equivalent. ये method हम कैसे करते हैं, It is performed by converting the specified concentration of the medicament, जो आपके specified concentration में आपके medicament available है उसको हम सोडियम क्लोराइड की concentration से equivalent कर देते हैं, ये मानते हुए कि दोनों का isotonicity सेम होगी। जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ A इज द गिवन मेडिकमेंट divided by the freezing point depression produced by sodium chloride of the same strength। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। freezing point depression of 1% weight by volume solution of ascorbic acid is equal to 0.105 degree Celsius, whereas 1% weight by volume NaCl solution का depression freezing point क्या है 0.576 degree Celsius। तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ 1% एस्कॉर्बिक एसिड कितना हुआ 1.105 डिवाइडेड बाय 0.576, दैट विल बी इक्वल टू 0.18। ठीक है, अब ये जितने भी मेथड्स मैंने आपको समझाए हैं यहाँ पे आइसोटोनिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, ये सारे मैंने लिए हैं डिस्पेंसिंग फार्मेसी बाय कूपर एंड गन।
इस बुक के अंदर आपके नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इन मेथड्स को कैलकुलेट करने के लिए। जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये मेथड्स क्लियर होते जाएंगे। तो एक बार प्लीज़ आप उस बुक में भी दोबारा से रीड करिएगा ताकि आपके जो ये कैलकुलेशन है ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। अदर added substances for sterile preparation are chelating agents. They may be added to bind in non-ionizable form trace amount of heavy metals. Examples of chelating agents are calcium ethylene diamine tetraacetic acid, which is used in the concentration of 0.05% weight by volume. Next is the inert gases. ये inert gases क्या करती हैं? ये आपके सॉल्यूशन के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको डिस्प्लेस करती है ताकि आपके सॉल्यूशन में किसी तरह के ऑक्सीडेटिव चेंजेस ना हो सके। एग्जाम्पल्स हैं आपके हीलियम। लास्ट वन इज द प्रोटीन स्टेबलाइजर्स। These are added to minimize the loss of protein caused by surface binding in glass and other surfaces. ये जो प्रोटीन स्टेबलाइजर्स हैं ये जनरली हम फ्रीज ड्राइंग फॉर्मुलेशंस में ऐड करते हैं। ये आपके जनरली दो तरीके के होते हैं, वन इज द क्रायोप्रोटेक्टेंट एंड अनदर वन इज द लायोप्रोटेक्टेंट। ये क्या करते हैं? दे जनरली मिनिमाइज द प्रोटीन डीनेचुरेशन ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग। इसके एग्जांपल्स हैं सॉर्बिटोल, ग्लिसरॉल, सुक्रोज, ग्लाइसिन एक्सेट्रा। With this, we are end with our topic of discussion. Please don't forget to subscribe my channel and do share my videos. Thank you.